بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ایوری ون، مائی سیلف اے جے، ویلکم ٹو یوٹیوب چینل کل رائٹس رومانٹک ناول۔ تو دوستو، یہ چینل ہے کل رائٹس کا، جو کہ یہاں پر اپنے رومانٹک ناولز اپلوڈ کریں گی اور بہت اچھی رائٹر ہیں وہ۔ آئی ہوپ آپ لوگوں کو یہاں ان کے ناول ریڈ کر کے بہت مزہ آئے گا۔ تو ان کا جو فرسٹ ناول ہے جو کہ اس چینل پر گل رائٹس رومانٹک ناول پر اپلوڈ ہونے جا رہا ہے، وہ ہے دیوانہ پن، تو جس کی فرسٹ ایپیسوڈ میں آج اپلوڈ کر رہی ہوں۔ انشاءاللہ ڈیلی بیس پر اس ناول کی روز آپ لوگوں کو ایپیسوڈ پڑھنے یا سننے کو ملے گی۔ تو آپ لوگوں نے چینل کو لازمی سبسکرائب کرنا ہے، بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کرنا ہے، اپنے فرینڈس کو انوائٹ کرنا ہے اور چینل کو زیادہ سے زیادہ گرو کرنے کی کوشش کرنا ہے، تاکہ جو ہمارا یوٹیوب کا ٹارگیٹ ہوتا ہے وہ پورا کمپلیٹ ہو جائے۔ تو چلیے میں سٹارٹ کرتی ہوں گل رائٹس کا ناول دیوانہ پن، جس کی آج میں فرسٹ ایپیسوڈ اپلوڈ کروں گی۔ تو لیٹس سٹارٹ۔ ہری خوبصورت سی آنکھیں، اور یہ ناول ہے فنی ایڈونچر رومانٹک بیس پر۔ جلد از جلد اس مصیبت سے جان چھڑواؤ فضا، سفیان نے اس کے ابھرے سے وجود کو دیکھتے نخوت سے کہا، تو فضا نے اس کی روکتے اسے دیکھا۔ سفیان، یہ آپ کے ہی وجود کا حصہ ہے۔ پیٹ پر ہاتھ دھرتے اس نے ماتم کناں نظروں سے اپنے شوہر کو دیکھا، جو شادی سے پہلے اس کی جھولی بھرتے اب اپنی ہی نشانی کو ناجائز جیسے الفاظ بکتا تھا۔ فضا، میرے ساتھ رہنا ہے تو اسے ختم کرو۔ کچھ ماہ اس کے بعد تم اسے کسی کو دے دینا۔ اس کی شکوہ کناں نظروں سے آنکھیں چراتے وہ جلدی سے کہتے بیڈ پر لیٹ گیا، یا اللہ میری مدد کر، میری اولاد کی حفاظت کر۔ اس معصوم کا کوئی قصور نہیں ہے، وہ بے قصور ہوتے بھی کیوں سزا بھگتے؟ میرے مالک، بے شک تو بہتر انصاف کرنے والا ہے۔ اپنے وجود میں موجود پلتی اس ننھی سی جان کو محسوس کرتے وہ آنسو پیتے دل ہی دل میں بول رہی تھی۔ اپنے شوہر کے آگے وہ بے بس تھی، یا شاید اپنے بارے میں سوچتی وہ اپنی اولاد کے مستقبل کو نہیں سوچ رہی تھی۔ کیا مطلب ہے ڈاکٹر؟ کچھ دن پہلے آپ نے کہا تھا کہ بیٹی ہوگی، اب آپ کہہ رہی ہیں کہ بیٹا ہے؟ سرمت لاشاری خونخوار نگاہوں سے گھورا۔ ان کا بس چلتا تو ڈاکٹر کو الٹا لٹکا دیتے، جو اب اپنی بات سے پھر رہی تھی۔ تو دیکھیں لاشاری صاحب، بیٹا ہو یا بیٹی، یہ تو اللہ کی مرضی ہے، مشینیں غلط بھی ہو جاتی ہیں، بچہ الٹا ہے۔ ان کے یوں گھورنے پر وہ بھوکلائیں، جلدی سے کہتی ہوئی آگے کو بڑھیں۔ ان لاشاریوں کے منہ لگ کر وہ اپنی جان جوخم میں نہیں ڈال سکتی تھی۔ اگر ہمیں پوتی نہ ہوئی تو ہم اس عورت کو اس گھر میں نہیں رہنے دیں گے۔ وہ ابھی لاشاری پیلس میں دہلیز پر تھی کہ ایک دھاڑتی ہوئی آواز ان کی سماعت ہوئی، جسے سن کر وہ لرز اٹھیں۔ بھیگی نیلی آنکھیں وہ اس ستمگر کی طرف اٹھیں جو انہیں سہارا دیے اندر لے جا رہے تھے۔ ان کی پریگننسی کا 8واں مہینہ چل رہا تھا۔ مبارک ہو اماں سائے، ہمیں بیٹی ہی ہوگی۔ ان کی سمندر سی نگاہوں سے نظریں چرا کر انہیں صوفے پر بٹھاتے تخت جیسے صوفے پر بیٹھی اپنی اماں فریدہ لاشاری کے پاس پہنچتے ان کے سامنے سر جھکا گئے۔ ماشاء اللہ، اللہ خوش رکھے تمہیں اور تمہاری اولاد کو۔ یہ خبر سن کر وہ خوشی سے نہال ہوتے اپنے تخت سے اٹھتیں، ان کو گلے سے لگاتے دعائیں دیتیں۔ ساریہ سرمت لاشاری کے پاس پہنچیں۔ جاؤ، یہ غریبوں میں تقسیم کر دو۔ ہزاروں کے کئی نوٹ ان کے اوپر سے وارتے وہ ان کا ماتھا چومتی انہیں لیے اپنے تختے پر بیٹھیں۔ ساریہ لاشاری نے نم نگاہوں سے سرمت لاشاری کو دیکھا، جو نظریں چراتے وہاں سے چل دیے۔ ساریہ لاشاری کی نم بھیگی آنکھیں اب فریدہ لاشاری پر اٹھیں، جو انہیں محبت بھری نظروں سے دیکھتیں اپنا خیال رکھنے کا کہہ رہی تھیں۔ یا اللہ، اگر انہیں ذرا سا بھی علم ہو گیا کہ ڈاکٹرز نے بیٹا بتایا ہے تو؟ آگے سوچ کر ان کی روح لرز اٹھی تھی۔ جو عورت صرف ہوتی کا سن کر خوشی سے اس کے صدقے واری جا رہی تھی، وہی عورت بیٹی نہ ہونے پر انہیں طلاق دلوانے والی تھی۔ بہو، یہ کیا حالت بنائی ہوئی ہے؟ جاؤ، جا کر کپڑے بدلو اور خوش رہا کرو۔ یوں اداس رہو گی تو ہماری پوتی پر اثر پڑے گا۔ شفقت سے ان کے سر پر ہاتھ رکھتی وہ محبت سے سمجھانے والے انداز میں بول رہی تھی۔ یقین کرنا مشکل تھا کہ یہ وہی عورت ہے جو ابھی کچھ دیر پہلے اسے گھر سے نکالنے کی بات کر رہی تھی۔ بہو، انہیں سوچوں میں گم دیکھ وہ تفتیشی نظروں سے اسے دیکھنے لگیں، تو وہ چونک کر ان کی طرف مڑتی بھیگی آنکھوں سے سر ہلاتی وہاں سے اٹھ گئیں۔
अब्बास लाशारी और इनकी बेगम फरीदा लाशारी की शादी के 5 साल बाद सरमत लाशारी की पैदाइश हुई थी। ये कहना गलत नहीं होगा कि सरमत लाशारी मुंह में सोने का चम्मच लेकर पैदा हुए थे। इनकी पैदाइश के बाद अब्बास लाशारी का शुमार दुनिया के जाने माने बिजनेसमैन में होने लगा था। सरमत लाशारी पढ़ाई के बाद अब्बास लाशारी के बिजनेस को मजीद ऊंचाइयों पर ले गए थे। फिर सरमत लाशारी की शादी का शोर उठा कि सरमत लाशारी को एक दिन सारिया नजर आई, जो कि दारुल अमान में रहती थी। इनके आगे पीछे कोई नहीं था। दिल के हाथों मजबूर सरमत लाशारी अपने चंद दोस्तों को लेकर सारिया को सारिया सरमत लाशारी बनाकर अपने घर लेकर आए थे। कुछ दिन तो अब्बास लाशारी और फरीदा लाशारी इनसे नाराज थे, मगर इकलौती औलाद से कितने दिन दूर रह सकते थे। सरमत लाशारी को माफ़ी मिल चुकी थी, मगर सारिया लाशारी से वो लोग खींचे खींचे ही रहते थे। फिर एक दिन सारिया लाशारी की उम्मीद से होने की खबर लाशारी पैलेस में खुशियों की सौगात लाई थी। सरमत लाशारी के यहाँ 2 जुड़वा बेटे पैदा हुए थे, पाशा और आलम। दूसरी बार भी 2 ही बेटे हुए थे, जबकि अब्बास खान को पोती की उम्मीद थी, मगर पोतों के आगे वो खामोश होकर रह गए। मगर इस बार इनकी ज़िद्दी बेटी हुई तो ही सारिया लाशारी को लाशारी पैलेस में रहने की इजाज़त थी, वरना अपने पोते को छीनकर वो इन्हें वहाँ से चलता करते। मगर किस्मत को क्या मंजूर था, ये तो आगे पता चलेगा। कुछ भी करो, लेकिन इस गुनाहों की पोटली को यहाँ से निकालो। फिज़ा, मैं तुम्हें रख सकता हूँ, मगर तुम्हारी इस नाजायज़ औलाद को नहीं। सुफियान ने नागवार नज़रों से दाई के हाथ में मौजूद बच्ची को देखा तो फिज़ा ने हैरत से आंखें फैलाई से देखा। मैं इसे कहाँ भेजूंगी? ये तो मुझे नहीं पता, कहीं फेंक दो, लेकिन निकालो, वरना मैं तुम्हें भी आज़ाद कर दूंगा। गुस्से से कहते वो वहाँ से निकला। बरसती तेज़ बारिश। फिज़ा ने अजियत से इस छोटी सी गुड़िया को देखा, जो हरी आंखों से इसे टुकुर टुकुर देख रही थी। मुझे माफ़ करना मेरी जान, भीगे लहजे में कहते वो इसकी आंखों को चूमती दाई को पकड़ा गई, जो खुद नागवारी से इसे देखते वहाँ से निकली। कुछ समझ ना आते वो इसे सफ़ेद कपड़े में लपेटते इसने वहीं पड़े ढेर सारे कूड़े पर इसे फेंक दिया। मेरी बेटी को महफूज हाथों में दे आई हो ना? इसने दाई से सवालिया अंदाज में पूछा तो वो मुस्कुराते हुए सर इस बात में हिला गई। फिज़ा ने गहरी सांस भरते आंसू पिए। आह, सरमत, होठों को भेजकर अपनी चीख रोकती वो सरमत लाशारी का हाथ दबोच गई, जो परेशानी से इन्हें देख रहे थे। रात के आखिर पहर का वक्त था। तेज़ बरसती बारिश में वो इन्हें कहाँ ले जाते? रास्ते पर हर तरफ से ब्लॉक कर दिए गए थे। सरमत, इसे रूम में ले चलो, दाई आ गई है, फरीदा लाशारी फिक्रमंदी से बोली। ये फिक्र इन्हें अपनी पोती की थी, ना कि सारिया लाशारी की। तकलीफ से कराती सारिया लाशारी को हवेली के आखिरी कमरे में पहुंचाते वो वहां से चल दिए। इसी कमरे में मौजूद दरवाजे से दाखिल होती दाई उनके पास आई। वो सब जले पैर की बिल्ली बने इधर उधर घूम रहे थे। इन सबको इंतज़ार था तो बस इस नन्ही मुन्नी सी गुड़िया की आवाज़ का। छोटी बेगम बेटी हुई है, मगर बेजान। दाई के अल्फाज थे या पिघला हुआ सीसा जो इनके कानों में उंडेला गया था। तकलीफ के बावजूद वह मुश्किल उठकर बैठती अपनी मरी हुई बेटी को देखने लगी। या अल्लाह, अब क्या होगा? इस बच्ची को सीने से लगाए वो बेआवाज़ रो दी। वो जानती थी अब इनको इस पैलेस से धक्के देकर निकाला जाएगा। दाई ने नम नज़रों से इन्हें देखा, फिर अफसोस से इन्हें देखती वो इस दरवाजे से निकल गईं। या अल्लाह, मेरी मदद कर। हवादान से नज़र आते आसमान को देखकर वो शिद्दत से रो दी। इनका दिल मातम कना था। औलाद का दुख तो था ही, अब तलाक का धब्बा भी इन पर लगना था। कुछ ही देर में इन सबको पता चल जाना था कि इनकी बेटी मरी हुई पैदा हुई है। यकीनन वो इसे वहाँ से जलील करके निकाल देंगे। इस बार तो सरमत लाशारी भी कुछ नहीं कर पाएंगे। ज़ारो ज़ार रोते वो बस अपनी बेटी को सीने से लगाए हुए थी। पता नहीं अब छोटी बेगम के साथ क्या होगा। अफसोस से सोचती वो तंग गलियों से गुजरती जा रही थी कि बच्ची की रोने की आवाज़ के साथ कुत्तों के भौंकने पर वो रुकी। इर्द गिर्द देखा तो दूर एक कपड़े पर कुत्तों को मुंह मारते भौंकते पाया। लोग गुनाह खुद करते हैं और बच्चे पैदा होते ही नाजुक फूल से वजूद को सड़कों पर फेंकते वहाँ मौजूद कुत्तों की खुराक बनने के लिए छोड़ देते हैं। या अल्लाह खैर। बच्चे के रोने की आवाज़ सुन इन्होंने पत्थर उठाते कुत्तों को भगाया। इनके जाते हुए इस रोते बच्चे के पास आई, जो बस एक सफ़ेद कपड़े में लिपटा रो रहा था। इसके वजूद पर कीचड़ लगा था। आसमान पर बिजली चमकी तो इसकी रोशनी में वो नन्हा कोमल सा खूबसूरत वजूद नजर आया। बेशक तू मेहरबान है। इस बच्चे को गोद में भरते वो आसमान की तरफ देखते मुस्कुराई। इस बच्ची को देख पहली सोच ही इन्हें छोटी बेगम की आई थी। सर पर दौड़ती वो वापस भागी। एक माँ ने फेंका था तो वही दूसरी बेबस माँ से अपनाने को तैयार थी। इसकी माँ की दुआएं रंग लाई थी। इस नाजुक सी बच्ची को अपने माँ बाप के गुनाहों को कफ़ारा नहीं अदा करना था। वो बमुश्किल उठकर जाते वो कांपते हाथों से दरवाज़ा खोलने लगी कि बच्ची की रोने की आवाज़ पर सिसकते हुई मुड़ी।
दाई के हाथ में मौजूद बच्ची को रोते देख वो हैरान हुई। छोटी बेगम, ये बच्ची हमें कूड़े में मिली है। अल्लाह ने आपकी सुन ली छोटी बेगम, अल्लाह ने आपको बेटी दे दी। वो उमर रसीदा थी, जानती थी कि सारिया लाशारी के साथ क्या होना है। रोती हुई बच्ची के ऊपर से कीचड़ साफ करते हुए इनके हाथों में पकड़ा गई, जो निढाल सी बिस्तर पर पड़ी थी। बच्ची को सीने से लगाते हुए रो दी। ये बाहर मौजूद वो सभी बच्चे की आवाज़ पर तड़प उठे थे। वो सभी ने बेचैनी से दरवाज़ा खुलने का इंतज़ार कर रहे थे। इनकी तदफीन मैं करवा दूंगी, आप परेशान मत हो बीबी जी, मैं सुबह आऊंगी, आपका ये राज मेरे साथ ही दफन होगा। मुर्दा बच्ची को इनके हाथों से लेते वो इसी दरवाजे से निकल गईं। सारिया लाशारी ने बंद होती आंखों से दरवाज़ा खोलकर अंदर आते सरमत लाशारी और फरीदा लाशारी को देखा, जो गुलाबी कंबल में लिपटी नाजुक गुड़िया उठाते खुश हो रहे थे, और बस उनकी आंखों में अपनी मुर्दा बच्ची लहराई। वहीं इनकी आंखें मजीद बोझ ना सहते बंद हुईं। 18 साल बाद ब्लू जीन्स कोट पहने, ब्राउन बालों में लूज कर्ल करके, दोनों कंधों पर फैलाए सुर्ख सफ़ेद कलाई में पहनी, वॉच में टाइम देखती, नज़ाकत से चलती, ग्लास डोर धकेलकर आगे बढ़ी। ब्लू हील की टिक टिक खामोशी में इर्तियाश पैदा करती सबकी तवज्जो अपनी जानिब खींच रही थी। हेलो मिस, आप कौन और बिना परमिशन कहाँ जा रही हैं? रिसेप्शन पर खड़ी लड़की इसके पास आती सताइशी नज़रों से इसे देखने लगी। इसके सवाल पर इसके कदम थमे। एक पाँव पर घूमते वो इसकी तरफ मुड़ी। ब्लैक ग्लासेस उतारते इसने ग्रे आंखों से इसे देखा, जो इसकी हरी आंखें देखकर ही साकित हुई थी। इतनी खूबसूरती इसने कब कहाँ देखी थी? ईशल, ईशल सरमत लाशारी नाम है मेरा। एक अदा से कहते इसके कदम फिर से उठे, जबकि इसके नाम पर रिसेप्शन वाली लड़की ने हैरत से इसे खूबसूरती की मलका को देखा। इसका नाम वो कैसे न जानती? लाशारी ख़ानदान की इकलौती बेटी ईशल सरमत लाशारी हर तरफ छाई हुई थी। इसे देखा बहुत कम लोगों ने था, तबाही मचाने को बस इसका नाम ही काफ़ी था। इसकी हरी आंखें सबको अपनी जानिब मुतवज्जा कर रही थीं, मगर वो सबसे बेनियाज नज़ाकत से चलती आगे बढ़ रही थी। मीटिंग रूम के दरवाजे को खोलते वो अंदर गई। पीछे मौजूद अमला अब अंदर से आने वाले शोर के लिए खुद को तैयार करने लगा था, मगर खामोशी पाकर वो सभी हैरान हुए। ब्लैक 3 पीस पहने वो खूबरू सा शख्स अपनी रोबदार पर्सनैलिटी की वजह से मीटिंग रूम में छाया पड़ा था। हर कोई इस खूबरू नौजवान को महवियत से देख रहा था कि दरवाज़ा खुलने की आवाज़ पर इन सब की महवियत टूटी। बेजार सी नज़रें दरवाजे की जानिब उठीं तो वहीं ठहर सी गईं। व्हाट द वो इन सबको दरवाजे की जानिब तकते पाकर वो शिद्दत से धाड़ते दरवाजे की जानिब मुड़ा, मगर वहाँ खड़ी शख्सियत को देखकर ठहर सा गया। वहशत उगलती काली आंखों में एकदम सी नरमी छाई। जब वो चुपचाप चलती सरबराही कुर्सी पर विराजमान होती, मीटिंग दोबारा शुरू करने का इशारा कर गई। ईश, पाशा के बुलाने पर वो कंधे उठाकर नीचे करती, मुंह बिगाड़ती, सीधी होकर बैठी, लंबे नाखूनों वाली नाजुक सी मखरूती उंगलियां एक दूसरे में उलझाए प्रोजेक्ट के बारे में बताते पाशा को संजीदगी से सुन रही थी। लाइट्स ऑन होते ही सबने तालियां बजाते इसे सराहती नज़रों से देखा। जब से पाशा लाशारी ने बिजनेस की दुनिया में कदम रखा था, तब से अब तक इनका हर प्रोजेक्ट कामयाब रहा था। हर कोई पाशा लाशारी का दीवाना हुआ था। जहां इसके दीवानों की तादाद में इजाफा हुआ था, वहीं पाशा लाशारी के दुश्मन भी बढ़े थे। वो सब डाइनिंग टेबल पर बैठे रात का खाना खाने में मसरूफ थे कि सरमत लाशारी के साथ वाली कुर्सी पर विराजमान ईशल को गुमसुम प्लेट को घूरते देख अब्बास लाशारी ने सबको सवालिया नज़रों से देखा, जो इनके देखने पर ही कंधे उचका गए। ईशल, भारी रोबदार आवाज़ ने खामोशी तोड़ी। ईशल ने हरी नज़रों से उन्हें देखा, जो परेशानी से उसे देख रहे थे। क्या हुआ है मेरे बच्चे को, खाना क्यों नहीं खा रहा? अब्बास लाशारी ने पूछा। उनके लहजे में फ़िक्र और बेचैनी साफ वाज़े हो रही थी। कुछ नहीं, बस मेरा दिल नहीं है खाने को, वो धीमे लहजे में बोली तो फरीदा लाशारी कुर्सी से उठते इसके पास आई। मेरी जान, क्या हुआ है मूड को? तेरी माँ ने कुछ कहा है मेरी लाडो को? फरीदा लाशारी ने खुनख्वार निगाहों से सारिया लाशारी को देखा तो वो जल्दी से नहीं में सर हिलाती, इनके हाथ पकड़ती सिसक उठी। इसके सिसकने पर जहाँ वो सभी इश्तियाल में आए, वहीं पाशा ने थूक निकलते सबको देखा। वो सुबह से इससे 1000 बार माफ़िया मांग चुका था, मगर वो मानने को तैयार नहीं थी। मुझे नहीं रहना यहाँ। इसकी नम आवाज़ पर वो सभी सदमे से इसे देखने लगे। सरमत लाशारी ने पाशा की मदद तलब नज़रों को खुद पर पाते से घूरा। जाने अब क्या किया था इनके सपूत ने? क्यों लाडो, हमें बताओ, किसने हमारी लाडली को रुलाया है? हम उसकी हड्डियां तोड़कर उधर से निकाल खड़ा कर देंगे। अब्बास लाशारी ने सबको सख्त नज़रों से देखते इसे सीने से लगाया, जो अब नम आंखों से पाशा को देख रही थी। ये सुबह हम पर चिल्लाए इतनी ज़ोर से? एक उंगली से पाशा की तरफ इशारा करते वो हरी आंखों में नमी लिए मासूमियत से बोलती इनसे लगी। बरखुरदार, इस गुस्ताखी की वजह?
अब्बास लाशारी ने संजीदगी से पूछा। अगर इनकी जगह कोई होता तो यकीनन वो अब तक ज़मीन में गड़े अपनी आखिरी सांसें ले रहा होता। दाजी, मुझे नहीं पता था कि ऐश वहाँ होगी। मुझे लगा मेरी असिस्टेंट है। सबकी सख्त नज़रों के इशारे में खुद को पाते वो जल्दी से बोला, ये मुझे अपनी असिस्टेंट समझ रहे थे। देखा दाजी, मेरी कोई कदर नहीं है। मुझे नहीं रहना, बस मैं अपने शौहर के घर जाऊंगी। हैरानी से हरी आंखें फैलाए वो पाशा को देखती बोली और उठ खड़ी हुई। अब सब हैरान परेशान से इस नन्ही आफत को देख रहे थे। मेरी जान, ये आपके दाजी का वादा है। आइंदा कोई भी आपको गुस्से से देखे भी तो आपको पूरा पूरा हक है कि इस शख्स का बाजू पकड़ते इसे यहाँ से निकाल खड़ा करेंगी, तो भी हमें अपने हम कदम खड़ा पाएंगी। इसके पेशानी चूमते वो मोहब्बत पाश नज़रों से इन्हें देखते हुए बोले। इसे अपने हाथों से खाना खिलाने लगे। सारिया लाशारी ने संजीदगी से इन सबको ईशल के लाड उठाते देखा, पर इनकी नज़रें अपने चारों बेटों को गईं। वो भी जान निसार करती नज़रों से ईशल को देखते खाना खाने में मसरूफ़ हो चुके थे। इन सब का खाना इसे देखकर ही हजम होता था। ये कहना मुनासिब होगा कि लाशारी पैलेस के मकीनों की जान ईशल लाशारी नामी आफत के अंदर कैद थी। सुफियान, पता नहीं मेरी बच्ची कैसी होगी। आपको पता है उसकी आंखें हूबहू मेरी जैसी थीं, हरी कांच जैसी। खाना बनाते वो उदासी से सोचते मुस्कुराई। सुफियान ने बेजारी से इसे देखा। फिज़ा, अब इस लड़की को याद करने से बेहतर है तुम अपनी औलाद पर ध्यान दो। देखो, आज इसका पहला दिन है यूनिवर्सिटी में। देखना, इसे सगी भी चीज़ की ज़रूरत हो तो मुझे बताना। मैं अपनी बेटी के लिए कुछ भी कर गुजरने को तैयार हूँ। सीढ़ियाँ उतर कर आती ऐना को मोहब्बत से देखते वो इसे सीने से लगा गए। फिज़ा ने अफसरदगी से इन बाप बेटी को देखा। अगर इनकी दूसरी बेटी होती तो अपने बाप के प्यार से महरूम रोती। जाने कहाँ होगी मेरी बच्ची। वो फिर से अपनी सोचों में उलझी आंखों में नमी फिर से छुपाती हुई। सुफियान और फिज़ा दोनों ने भाग कर शादी की थी। चूँकि इनके घर वाले अलग अलग कास्ट के थे, तभी वो लोग इस रिश्ते पर रजामंद नहीं थे। बाबा जान, हमें नहीं जाना यूनिवर्सिटी। पता नहीं कैसे अजीब अजीब से नमूने वहाँ आते हैं। फटी हुई जीन्स पहनकर खुद को कहीं का महाराजा ही समझ बैठते हैं। मासूमियत से कहती वो यूनी के बैक साइड पर जा रही थी कि किसी ने बाजू से पकड़ते अपनी ओर खींचा। आह! जोर से चीख मारती वो आंखें मीच गई। कुछ देर हर्षद महसूस ना कर आहिस्ता से आंखें खोलती हुई सामने देखने लगी। सामने खड़ी लड़की गुस्से से इसे घूर रही थी। एक पल को इसे लगा जैसे इसकी माँ इसके सामने मौजूद हो। बीबी, पहली दफ़ा आई हो यूनी, दिमाग नामी चीज़ नहीं है भेजे। इतना तो सुना होगा कि यूनी की बैक साइड पर जाना आम लड़कियों के लिए किस कदर ख़तरनाक है। और फिर तुम तो खूबसूरत हो, और खूबसूरत भी अच्छी खासी। वाइट ट्राउज़र शर्ट में मुलविस कंधों पर दुपट्टा फैलाए खड़ी थी। ईशल ने ऊपर से नीचे तक इसे घूरा तो ऐना ने सटपटा कर इसे देखा। वो अपनी तारीफ पर शर्माती या बेइज्जती पर रोती। सॉरी, वो मुँह भी सोरे बोली तो ईशल ने हरी आंखें घुमाते इसे देखा। वो इसे क्यों सॉरी कर रही थी। गहरी सांस भरते इसने पीछे मुड़कर देखा जहाँ इसके भाई अड्डे इसे ढूंढ रहे थे। फिर इसकी तरफ मुड़ी। ये तुम्हारा स्कूल कॉलेज नहीं है, यहाँ किसी को खुद पर सवार मत करना वरना इसकी खात्मा बनकर रह जाओगी। गलतियों पर नादिम महसूस करो तो माजरत कर लो। वो भी इस तरह के सामने वाले को माजरत ही लगे, भीख नहीं, वरना यहाँ के लोग तुम्हें हर टाइम भीख देने को तैयार होंगे। तल्ख मगर हकीकत इस पर आश्कार करती वो मुअज्जम की तरफ बड़ी जो बेचैन नज़रों से इसे हर तरफ देख रहा था। इसे देखकर पुरसुकून हुआ। पीछे खड़ी है ना बस इस हरी आंखों वाली परी को देखकर रह गई। खूबसूरती के साथ ज़हानत बहुत कम देखने को मिलती है। इसके होठ मुस्कुराहट में ढले, भूरी आंखों में चमक बढ़ती गई। तो गाइस, ये थी हमारी गुल राइड्स नावल की फ़र्स्ट एपिसोड, जो कि आज उन्होंने फ़र्स्ट एपिसोड दी थी मुझे, जो कि मैं आज अपलोड कर रही हूँ। तो अब आप लोगों ने बस इतना सा काम करना है, लाइक करना है एपिसोड को, कमेंट लाजमी करना है, चैनल को अपने चैनल पर दोस्तों को इन्वाइट करके चैनल को शेयर करना है। तो इंशाल्लाह कल मिलेंगे इस नावल की नेक्स्ट एपिसोड के साथ। मुझे इजाज़त दीजिए और अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।